Assalamu alaikum. We are going to learn the poem. The name of poem is Please Listen, which is prescribed for Standard 9. This is the poem which is written by unknown poet, generally which is called anonymous in English. First of all, we will read this poem and try to understand the poem in detail. So please listen. This poem is generally addressed by an young lad to his parents. So first of all, we will read this poem. Please listen. When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings. When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me, strange as that may seem. So in these three stanzas, generally the young lad who is talking to his parents, he wants to listen him first. इस पोयम में एक नौजवान बच्चा अपने वालिदैन से गोया ये कह रहा है कि मेरी सुनो. When I ask you to listen to me, मैं जब तुम्हें मुझे सुनने के लिए कहता हूँ and you start giving me advice, आप है कि मुझे मशवरा देना शुरू कर देते. You have not done what I asked. आप लोगों ने वो नहीं किया जो मैंने आपको कहा. क्या कहा मैंने? When I asked you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings. यहाँ फिर से वो कह रहा है कि मैं जब आप मुझे सुनने के लिए कहता हूँ तो आप मुझे बोलना शुरू कर देते हैं. Why I should not feel that way? क्यों मैं आप जैसे महसूस करते हैं वैसे महसूस क्यों नहीं करता? यू आर ट्रैम्पलिंग ऑन माई फीलिंग्स. यानी ये गोया जब आप मुझे बोल रहे हो तो ये गोया मेरे आप जज्बात को रौंद रहे हो. ट्रैम्पलिंग ये नया वर्ड है, रौंदना जिसको कहते हैं. When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, मैं जब आपको कहता हूँ कि मेरी सुनो तो आप है कि आपको ये महसूस होता है कि मेरे प्रॉब्लम आप सॉल्व करें. यह फेल्ड मी, तुम तो मुझे नाकाम किए हो. स्ट्रेंज इज दैट मे सीम, बड़ा अजीब मामला है जैसे मुझे दिखता है. जनरली हियर द बॉय व्हेन ही आस्क्स टू लिसन हिम, द पेरेंट्स स्टार्ट giving advice and he does not like this. Hope as पसंद नहीं करता. Listen, all I ask is that you listen. सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि तुम सुनो. Don't talk or do, just hear me. Otherwise you choose 20 saints who will get you both a dear Abby and Billy Graham in the same newspaper. And I can do for myself. I'm not helpless, maybe discouraged and faltering, but I'm not helpless. When you do something for me that I can and need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy. Listen, सुनो. जो मैं कह रहा हूँ आपको कि आप सिर्फ सुनो. Don't talk or do, just hear me. कुछ बोलो मत तो कुछ करो मत, सिर्फ मेरी सुनो, मुझे सुनो. एडवाइस इज चीप. मशवरा देना तो बड़ा आसान है. 20% will get you both dear Abby and Billy Graham in the same newspaper.
आमतौर पर अखबार में ऐसा होता है कि कुछ लोग सवालात करते हैं और ये जो कॉलम लिखने वाले रहते हैं जिसको कॉलमनिस्ट कहते हैं, यानी आप देखा होगा कि सवाल कारीन के होते हैं, जवाब इनके होते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि सिर्फ 20% ही उसी अखबार से समझा जा सकता है। एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, और मैं सब कुछ मेरे लिए कर सकता हूँ। आई एम नॉट हेल्पलेस, मैं बेबस नहीं हूँ। मे बी डिस्करेज्ड, थोड़ा सा हिम्मत पस्त हो जाऊँ, एंड फाल्टरिंग, थोड़ा सा हिचकिचाऊँ, बट नॉट हेल्पलेस, लेकिन मैं बिल्कुल बेबस नहीं हूँ। वेन यू डू समथिंग फॉर मी दैट आई कैन, जब तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो जो मैं कर सकता हूँ, आई नीड टू डू फॉर माई सेल्फ, और मेरे लिए कुछ करने को चाहते हो या मेरी जो जरूरत महसूस होती है, यू कंट्रीब्यूट टू माई फियर एंड इनएडिक्वेसी, तो मेरी सिर्फ जो फियर है, मेरी जो घबराहट है उसको, या इनएडिक्वेसी को, ये जो मेरी नाकामयाबी है, इसको आप लोग चाहे तो शेयर करो। बट वेन यू एक्सेप्ट एज अ सिंपल फैक्ट दैट आई फील व्हाट आई फील, नो मैटर हाउ इरेशनल, then I can stop trying to convince you and get about this business of understanding what's behind this irrational. And when that's clear, the answers are obvious and I don't need advice. Irrational feelings may sense when we understand what's behind it. But when you accept as a simple fact that I feel what I feel, लेकिन जब ये तुम तस्लीम करते हो कि जो मैं महसूस करता हूँ वो तुम महसूस करोगे, no matter how irrational, फिर ये मामला नहीं रहता कि वो कितना गैर माकूल है। देन आई कैन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस यू एंड गेट अबाउट दिस बिजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स बिहाइंड दिस इरेशनल फीलिंग्स। फिर ये बिल्कुल बात रहती नहीं कि अगर तुम, मैं जो गैर माकूल सोचता हूँ वो तुम्हें मैं कैसे कन्विंस करूँ या मैं तुमको कैसे समझाऊँ, ये अगर आप समझ जाते हो तो फिर मैं गैर माकूल जज्बा क्यों रखता हूँ, ये मामला नहीं रखता। एंड वेन दैट इज क्लियर, और जब ये मामला साफ हो जाता, वादा हो जाता, आंसर्स आर ऑब्वियस एंड आई डोंट नीड एडवाइस, फिर तो पूरे जवाब आसान, और फिर मुझे मशवरे की कोई जरूरत है ही नहीं। इरेशनल फीलिंग्स मेक सेंस, गैर माकूल जज्बात जो है उस वक्त में हमें समझ में आ जाता है व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट्स बिहाइंड देम, जब हम उसके पीछे का मकसद समझ जाते हैं तब हमें मालूम पड़ता है। इसीलिए इट इज नेसेसरी टू लिसन फर्स्ट, इसीलिए ये जरूरी है कि पहले हम इसको क्या करें, समझें, हम बिल्कुल नतीजे पर ना आए। हियर द बॉय द सन वॉन्ट्स टू बी हर्ड ओनली, उसको सिर्फ सुनना यहाँ वो पसंद कर रहा है। परहैप्स दैट्स व्हाई प्रेयर वर्क्स sometimes for some people because God is mute and he doesn't give advice or trying to fix things. इसीलिए शायद बहुत सारे लोगों को दुआएं काम आती है, ठीक, और some people, कुछ लोगों को दुआएं काम आती हैं because God is mute, इसलिए कि खुदा क्या है, बड़ा समाज रखता है, बड़ा सुनने वालों में से, वो बोलता नहीं है, एंड ही डजंट गिव एडवाइस, और वो मशवरा नहीं देता है और ट्राई टू फिक्स थिंग्स, या कि आपके मसलों को बराह रास्त उतर के हल नहीं करता है। गॉड जस्ट लिसन, अल्लाह तबारक तआला सुनता है, आपकी सुनता है, एंड लेट्स यू वर्क, और फिर तुम्हें काम करने देता है, एंड लेट्स यू वर्क इट आउट फॉर योर सेल्फ, और तुम्हें अपनी तौर पर काम करने का मौका देता है। सो प्लीज लिसन, इसलिए मेहरबानी करके मेरी सुनो, एंड जस्ट हियर मी। ही इज रिक्वेस्टिंग टू हिज पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप को दरखास्त कर रहा है, एंड इफ यू वांट टू टॉक, और फिर भी तुम बात करना चाहते हो, वेट अ मिनट फॉर योर टर्न, फिर तुम्हारी बारी आने तक आप क्या कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट के लिए, एंड आई विल लिसन टू यू, और फिर मैं तुम्हारी जरूर सुनूंगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। एक्चुअली टाइम डज नॉट अलाउ टू एक्सप्लेन मोर, but whatever I explained, I hope you understood. So if you like this video, you will like it and share it and subscribe our
channel. Thanks for watching and learning. Assalamu alaikum.